Good morning, student of class 3. How are you? I hope student you all are fit and healthy. So student, take out your book, open page number 74. So before starting the today topic, let's do the recapitulation what we have done in our previous video. So student, in the previous video we discussed what is, now I think this is very clear to all of you. If someone asks you what is means of transport, so I think all of you are able to give the answer. The different type of vehicles which we use to travel from one place to, what are means of transport, the different types of vehicles which we use to travel, or you can say to move from one place to another, that is their means of transport. And when we are studying about mean of transport, it is divided into three parts: land transport, air transport and water transport. Okay, and even when I tell you, when we are studying about the land transport, then also it is divided into two parts. One, the vehicles which are moving on the road, जो किस पे चल रहे हैं बेटा, जिनकी मूवमेंट किस पे होती है, रोड पे. और ट्रेन्स कैसे चलती हैं, रेलवे ट्रैक्स पे. ठीक है, सो दे आर आल्सो मीन ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट. सो दिस थिंग वी हैव डिस्कस in the previous video. So today let's start with the air transport. Okay, student, when we are talking about the air transport, the first important point, if you want to note down for the, this is the fastest mean of transport. Air transport, this is the fastest mean of transport. This is the fastest This is the fastest mean of, in your book it is written quickest, that is also the same meaning. You can say fastest also, that is also right. And in the place of fastest, if you use the word quickest, मतलब बहुत तेजी से, सबसे तेज चलने वाला, तो that is also right. So aeroplanes can go very fast and carry 100 of passengers at one time. So I already tell you, this is the fastest mean of transport. The distance which we are covering by the train within 12 hour or 10 hour, that distance you can cover if you go with the aeroplanes, the same distance you will cover in 1 hour. But what is the advantage of the aeroplane? That it is the fastest mean of transport. You can go anywhere in your country or another country. It take less time than any other mean of transport, than any other mean of transport. But the disadvantage of this is it is very costly. It is very expensive mean of transport. ठीक है, so that is another thing. और क्योंकि इसमें लिखा भी है, you can underline it also in your book also. But traveling by air is costly. Traveling by air is costly. Today we have air services linking all the important cities in the country and in the world. So now in present time, if you see that we have a good network of airports. ठीक है, ये वर्ड मैंने वहां भी यूज किया था when I am teaching you about the land transport. So there is a good network of a land transport in India. ठीक है, मतलब रोड्स क्या है, जो विलेजेस रोड है, they are attached to the cities, and cities are attached to another cities and big city with the help of the highways, with the help of the
highways. In the same manner, when we are talking about the air transport, there is a good network of a air transport in all parts of the country. Okay, so and not only in India, outside, it means in for going in another country also, there is a good network of air transport in our country. Is it clear? Now see student, beside aeroplanes, hot air balloons are also used to move from one place to another in space, in air, helicopter and airships. Airships, aeroplanes also move in the air. The same function of this airship is also, airship is a machine that can fly such as aeroplane. जैसे aeroplane fly करते हैं वैसे ही airship भी fly करती है. Is it clear? In the air. और aeroplane और हेलीकॉप्टर में थोड़ा ये डिफरेंस है. व्हाट इज द डिफरेंस? द हेलीकॉप्टर कैन फ्लाई ऑन द लो हाइट आल्सो. ठीक है, लो हाइट पे भी फ्लाइट कर सकता है. अनदर डिफरेंस इज दैट फॉर द एरोप्लेन यू नीड अ एयरपोर्ट, बिकॉज बिफोर फ्लाइंग इन द एयर इट रन ऑन द रनवे. ठीक है, जो एयरपोर्ट होता है उस पे, एरोप्लेन्स पे भी बेटा क्या व्हील्स लगे होते हैं. पहले बहुत फास्ट वो रन करता है व्हील्स पे, एंड आफ्टर दैट इट टेक ओवर. ओके, सो स्टूडेंट, एंड हेलीकॉप्टर क्या है? जहां आप लैंड करोगे, व्हेन यू स्टार्ट द मशीन, देन फ्रॉम द सेम प्लेस इट स्टार्ट मूविंग इन द एयर, फ्लाई करने लगेगा एयर में. बट नंबर ऑफ पैसेंजर दैट इज कैरीड बाय द नंबर ऑफ पैसेंजर, एरोप्लेन कैन कैरी मोर पैसेंजर देन हेलीकॉप्टर्स. ठीक है, अब ये हो गया एरोप्लेन्स का. अब देखो वाटर ट्रांसपोर्ट, सबसे ओल्डेस्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट जो बेटा है वो हमारा वाटर ट्रांसपोर्ट है. सी, we know that 70% of the earth is covered with a water. there are continents के बारे में मैंने बताया था आपको. 7 continents है, मतलब ये 7 जमीन के टुकड़े हैं. ठीक है, सो जहां पे लैंड है, जहां पे क्या है बेटा, जहां पे लैंड है. और हम लोग किस कॉन्टिनेंट में रहते हैं? हम लोग एशियन कॉन्टिनेंट में रहते हैं. ठीक है, जहां पे लैंड है. तो दिस इज द वाटर ही रूट था जिससे अलग अलग देश की डिस्कवरी हुई, खोज हुई. ठीक है, लोग वाटर ट्रांसपोर्ट के थ्रू ही चलते गए मैनी ईयर्स अगो. ठीक है, वो वाटर में चलते रहे. इस तरह उन्हें पता चला कि इधर ये कंट्री है, दैट विच कंट्री. सो इसीलिए वाटर ट्रांसपोर्ट को क्या है बेटा, ओल्डेस्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट भी बोला गया है. ठीक है, बिकॉज ड्यू टू दिस वाटर ट्रांसपोर्ट की वजह से ही सारे देशों की क्या हुई है, खोज हुई है. ठीक है, पुराने सेलर्स जो सेल करते थे वाटर में, दे बाय द वाटर रूट दे फाइंड द डिफरेंट कंट्रीज. ठीक है, सो that is the reason the oldest mean of transport is a water transport. Now student, people used to travel from one place to another using logs, small boats on water. logs of wood बहुत ओल्ड टाइम में यूज हुआ करता था. ठीक है, बिकॉज मैंने तुम लोग को बताया था, हो सकता है कभी कोई पेड़ गिर गया हो वाटर में, और अर्ली मैन ने ये चीज ऑब्जर्व की, इतना बड़ा पेड़ वाटर में गिर गया बट इट इज नॉट गोइंग डाउन, इट इज फ्लोटिंग ऑन द वाटर. वाटर के ऊपर वुड, जो कि वुड इतनी ज्यादा वेट होता है, बट इन द वाटर अगर आप वुड को डालो तो वुड क्या है, इट डोंट सेटल डाउन, वो नीचे नहीं जाती है, वो फ्लोट करने लगती है. तो हो सकता है अर्ली ह्यूमन बीइंग को वहां से आइडिया आया होगा, उसके रास्ते में कोई रिवर पड़ी हो या कुछ पड़ी हो, तो उसने ये देखा होगा कि वुड पे अगर बैठ के जाएं तो हो सकता है हम लोग वी कैन क्रॉस द रिवर. सो इस ढंग से बोट्स ये सब भी बनना स्टार्ट हुई होंगी. ठीक है, सो ये हो गया स्मॉल बोट्स ऑन वाटर यूजिंग लॉग्स, स्मॉल बोट्स ऑन वाटर. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द करंट टाइम. नाउ-अ-डेज पीपल यूज शिप्स है, बोट्स है, राफ्ट्स एंड स्टीमर्स से. ठीक है, ये सारी चीजें यूज होती हैं. ठीक है, शिप है, बोट है, राफ्ट है, स्टीमर्स हैं. ठीक है, कार्गो शिप्स भी होती हैं जो बहुत बड़ी होती हैं. ठीक है, दे आर यूज्ड फॉर कैरिंग लोड्स फ्रॉम वन कंट्री टू द अनदर कंट्री. ठीक है, सो these things are used as a mean of water transport.
नाउ ही सेइंग ए लार्ज पैसेंजर शिप कैन कैरी 1000 ऑफ पीपल। और जिस तरह देखो बेटा ट्रेन में भी बहुत ज्यादा लोग बैठ के जा सकते हैं, ठीक है, ट्रेन में भी बहुत लोग एट ए टाइम लॉन्ग डिस्टेंस दूर जा सकते हैं। इन द सेम मैनर इन द शिप आल्सो मैनी पीपल कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। सो लार्ज पैसेंजर्स, पैसेंजर मतलब यात्रियों को बोला जाता है। आज एक बच्चा पूछ रहा था ऑनलाइन क्लास में, सर पैसेंजर क्या होता है। आपने कई बार रेलवे स्टेशन में बोल सुनी होगी ये बात, यात्री अपनी सीटें, आपकी ट्रेन आने वाली है, सुने हैं ना, या बस में सुना होगा। तो पैसेंजर्स मीन यात्री, जो लोग ट्रेवल करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैसेंजर करते हैं। जैसे जो लोग दवाई लिखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, मेडिसिन, हमें देख के हमारी बीमारी की दवाई देते हैं तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, डॉक्टर, ठीक है। सो दोज पर्सन्स विच आर ट्रेवलिंग बाई एनी मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट, सो उन्हें क्या बोलते हैं, पैसेंजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, पैसेंजर बोलते हैं, ठीक है। अब देखो देखो A large passenger ship can carry thousands of people. The cargo ship can transport grains, goods and oil all over the world. ठीक है, कार्गो शिप्स क्या है, जो ईटेबल आइटम्स हैं, ठीक है, खाने की चीजें और दूसरी भी बहुत सी चीजें हैं जो एक देश से, ऑयल्स भी है, ऑयल्स भी दिया है, ऑयल ओवर द वर्ल्ड। तो देखो ट्रांसपोर्ट क्या है, ट्रांसपोर्ट बाई लैंड भी हो रहा है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट बाई लैंड भी हो रहा है और ट्रांसपोर्ट बाई एयर भी होता है, ट्रांसपोर्ट बाई शिप भी होता है, वाटर ट्रांसपोर्ट भी, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा होता है, ठीक है, मतलब शिप से और लैंड ट्रांसपोर्ट से सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। जो बड़ी बड़ी कार्गो शिप्स होती हैं दैट ट्रांसपोर्ट फूड ईटेबल आइटम्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्रीज आल्सो एंड आल्सो ऑयल ओवर द वर्ल्ड। A submarine travels underwater. The navy use it to protect the sea. Submarines क्या है बेटा, इसे पनडुब्बी बोलते हैं, ठीक है। आपने जितने भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट वाटर के देखे होंगे सारे दे फ्लोट ऑन द वाटर, बट दीज सबमरीन दे मूव अंडर द वाटर, ठीक है। नेवी, नेवी जैसे हमारे डिफेंस 3 पार्ट्स में बटा हुआ है बेटा, इज इट क्लियर। आर्मी है, एयरफोर्स है, नेवी है। सी, लैंड पे आर्मी काम करती है, ठीक है, वाटर में कोई भी लड़ाई हो कुछ हो तो नेवी देखती है, इज इट क्लियर। एंड व्हाट्स हैपन, एयर, आपने देखा है ना एरोप्लेन्स होते हैं, तो एयरफोर्स क्या है, अगर बाई एरोप्लेन फाइट करनी है, फाइट हो रही है तो हम लोग क्या यूज करते हैं, एरोप्लेन्स, एयरक्राफ्ट यूज करते हैं, ठीक है, एरोप्लेन्स यूज करते हैं। सो नेवी क्या है, नेवी दोज आर्मी, नेवी यूजेस इट टू प्रोटेक्ट द सीज, ठीक है। देखो अब आप लोग सोच रहे हो कि सी, तो इतने बड़े सी को क्या प्रोटेक्ट करना है। देखो बेटा जैसे जहां पे लैंड बाउंड्री है हमारी, जैसे जो हमारे पड़ोसी देश हैं, पाकिस्तान है, चाइना है, वर्मा है, बांग्लादेश है, ये सब हमारे क्या है, देश आर आवर नेबर कंट्रीज। तो कई जगह इनकी हमारे संग लैंड बाउंड्री है, तो लैंड बाउंड्री पे भी आप देखते होगे कि दोनों तरफ क्या सोल्जर्स अपनी अपनी सिक्योरिटी, अपने अपने एरिया की सिक्योरिटी करते हैं ना, इज इट क्लियर। इन द सेम मैनर कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां हमारी दूसरे देश से बाउंड्री कैसे हो जाती है, वाटर बॉडीज के थ्रू हो जाती है, ठीक है। तो वहां भी हमें अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करना है कि कोई अदर वहां से हमारे देश में ना आ जाए, ठीक है। जैसे आप सोच रहे होंगे कि द नेवी यूजेज इट टू प्रोटेक्ट द सी, ठीक है। प्रोटेक्ट द सी का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि सी एनिमल को बचाना, उनको कोई नुकसान ना हो, they do the protection of their country by which from in the water bodies, ठीक है। कोई हमारे देश में जैसे बॉर्डर्स पे होते हैं ना, हमेशा सोल्जर्स खड़े रहते हैं कि अदर कंट्रीज वाले हमारे यहाँ ना आ जाए। तो कहीं ऐसा है कि वाटर बॉडीज से भी कोई देश से हमारी बाउंड्रीज है, तो इन वाटर बॉडीज में भी हमें क्या करनी पड़ती है, प्रोटेक्शन करनी पड़ती है फ्रॉम द पीपल ऑफ अदर कंट्रीज आल्सो, क्योंकि कोई वाटर वे से भी तो हमारे यहाँ आ सकता है ना बेटा। सो इसलिए इसलिए नेवी यूज करती है इसे टू प्रोटेक्ट द सीज। नेक्स्ट है ए प्लेस वेयर शिप लोड एंड अनलोड पैसेंजर्स एंड गुड्स इज कॉल्ड ए पोर्ट और ए हार्बर। बहुत बच्चे ये चीज सबसे ज्यादा पूछ रहे थे, सर हार्बर क्या होता है, व्हाट इज
हार्बर ऑनलाइन क्लासेस में। एक्चुअली दैट टाइम मैंने अभी पढ़ाया नहीं है, आज के वीडियो में ये वर्ड मैं पढ़ा रहा हूँ हार्बर, अभी मैंने पढ़ाया नहीं था, आप एडवांस में पूछ रहे थे, लेकिन बहुत बच्चों ने पूछा। ठीक है बेटा, देखो कोस्ट लाइन होती है, ये भी न्यू वर्ड है आपके लिए, कोस्ट लाइन पहले समझो। व्हाट इज कोस्ट लाइन? देखो जहां पे सी वाटर लैंड को टच करता है, वेयर द सी वाटर टच द लैंड, दैट इज नोन एज अ कोस्ट लाइन। जहां पे समुद्र का पानी लैंड को टच करता है, जैसे हमारे यहाँ क्या है, रिवर गंगा है, ठीक है, तो गंगा के अगल बगल लैंड है ना बेटा, रिवर गंगा का वाटर उसे टच करता है ना। इज इट क्लियर? इन द सेम मैनर जो सी वाटर है, जहां वो लैंड को टच करता है, वेयर द सी वाटर टच द लैंड, दैट इज नोन एज कोस्ट लाइन। ठीक है, अब आओ हार्बर्स पे। कोस्ट लाइन इसलिए बताया क्योंकि बिना कोस्ट लाइन के हार्बर समझाना बेकार है। ठीक है, सबसे पहले कोस्ट लाइन आप समझ गए। अब देखो हार्बर्स क्या है, हार्बर्स इज द प्लेस, ये कहां होती है, कोस्ट लाइन में होती है, जो डीप इनफ होती है, बहुत गहरी होती है। वाई? क्योंकि शिप्स बहुत बड़े होते हैं, शिप आप रिवर में नहीं चलते देख सकते हो, सी में बहुत वाटर होता है, बिकॉज जितनी भी रिवर्स हैं वो लास्ट में अपना वाटर किसमें ज्वाइन कर देती हैं बेटा, सी में। तो सी बहुत ही ज्यादा डीप होते हैं, बहुत डीप होते हैं। ठीक है, गहरे बहुत होते हैं, डीप मतलब बहुत गहरे होते हैं शिप। अरे सॉरी, शिप कह रहे हैं, सी। सी जो होता है बेटा बहुत गहरा होता है। ठीक है, तो कोस्ट लाइन में ही हार्बर होते हैं। ठीक है, क्योंकि कोस्ट लाइन ही वो एरिया है जहां सी वाटर किसको टच कर रहा है, लैंड को टच कर रहा है, जमीन को टच कर रहा है। तो ये हार्बर कोस्ट लाइंस में होते हैं, लेकिन ये बहुत डीप होते हैं। क्यों बहुत डीप होते हैं? क्योंकि शिप जो है, शिप बहुत ज्यादा पानी में ही तो शिप स्टैंड हो सकता है, थोड़े से पानी में तो शिप स्टैंड हो नहीं सकता बेटा। इज इट क्लियर? तो ये बहुत डीप होते हैं, और यहाँ पे हार्बर आगे आपको समझ में, और इसी के बगल में इसने लिखा है हार्बर और पोर्ट। पोर्ट मतलब सी पोर्ट, पोर्ट मतलब सी पोर्ट। अब देखो क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है ये भी बता देता हूं। जैसे देखो, वाराणसी इज फेमस फॉर रिवर गंगा, और आई होप क्लास में एक भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जो गंगा जी ना गया हो, सारे गए होंगे कभी ना कभी। ठीक है, तो आप देखोगे रिवर, जो गंगा रिवर है, तो उसके चारों तरफ आप देखो बहुत, इट इज फेमस फॉर द घाट्स, पूरे घाट्स हैं, और पूरा शहर बनारस क्या है, रिवर बैंक पे बसा हुआ है, रिवर के किनारे बसा हुआ है, पूरा शहर बस गया है। क्योंकि गंगा क्या है, हिंदुओं की होली रिवर है, हम उसकी वर्शिप करते हैं, वर्शिप करते हैं, तो वहां बहुत से टूरिस्ट आते हैं। ठीक है, टूरिस्ट आते हैं, तो टूरिस्ट आएंगे तो वो खाएंगे भी, वहां रहेंगे भी, कुछ खरीदेंगे भी, तो इसलिए पूरे वहां लोग बस गए हैं, गंगा के किनारे बस गए ना। अब देखो ये शिप आ रहा है, इतना बड़ा शिप जिसमें हजारों पैसेंजर्स होते हैं, बहुत सा सामान, अभी मैंने बताया ना आपको, शिप में हम लोग बहुत सा खाने का सामान, इवन ऑयल है, ये भी एक देश से दूसरे देश भेजते हैं। अब देखो बेटा, जहां इतने बड़े बड़े शिप आएंगे, तो वहां भी जो एरिया होगा वो एकदम शहर की तरह बस जाएगा ना, क्योंकि बहुत से टूरिस्ट जाते होंगे सी देखने, एक हर साल हजारों लाखों टूरिस्ट जाते होंगे सी देखने, और वहां शिप भी आ रहे हैं, तो वहां भी एक बहुत बड़ा सा शहर बस गया ना, उसी को बोलते हैं पोर्ट। ठीक है, जहां पे शिप खड़े होते हैं, उन्हें लोड अनलोड कर दिया किया जाता है, उसी एरिया के आसपास जो एक बड़ा सा शहर बस जाता है, उसी को हम लोग पोर्ट बोलते हैं। आ गया सबके समझ में? इज इट क्लियर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सी पोर्ट? जो हार्बर के अगल बगल जो दुनिया बस गई, जैसे गंगा जी होली रिवर है, हम सब वर्शिप करते हैं, तो बहुत से लोग टूरिस्ट आते हैं वहां एवरी ईयर, तो बहुत सी दुनिया बस गई, क्योंकि बहुत सा बिजनेस वहां मिल रहा है। ठीक है, लोगों को बहुत सी रोजगार मिल जा रही है, तो दैट इज द रीजन
हार्बर भी एक ऐसी प्लेस है जहां शिप आ रही है, तो उसके अगल बगल का जो पूरा एरिया बस गया वही आपका पोर्ट है, दैट इज द पोर्ट। एंड व्हाट इज हार्बर? हार्बर इज द प्लेस इन द कोस्ट लाइन वेयर द शिप डॉक, डॉक मतलब जहां शिप को खड़ा करते हैं, ठीक है, जहां से पैसेंजर उतरते हैं या नए पैसेंजर चढ़ते हैं या सामान लोड होता है अनलोड होता है, दैट इज दिस क्लियर नाउ? अब आई होप हार्बर वर्ड सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब ओके स्टूडेंट, आई होप नाउ यू ऑल आर एबल टू अंडरस्टैंड what is the meaning of the harbor and what is the port, which place is known as port, both the things are clear to you। and what is the coastal line, एक बार फिर रिपीट करा देता हूं क्योंकि आपके लिए ये न्यू वर्ड है। coastal line is a new word for you। it is a place where sea water touches the land। ये वो प्लेस है जहां पे सी वाटर किसको टच कर रहा है बेटा? लैंड को टच कर रहा है। इज इट क्लियर? दैट इज नोन एज कोस्टल लाइन, दैट इज नोन एज कोस्टल लाइन। सो अब देखो नेक्स्ट पढ़ते हैं। द नेक्स्ट टाइम यू विजिट अ रेलवे और बस स्टेशन और एन एयरपोर्ट, look around। Apart from travelers like you, there are many other people working there who help our trains, buses and aeroplanes runs smoothly। ठीक है, आप कभी भी बेटा रेलवे स्टेशन चले जाओ या एयरपोर्ट चले जाओ, आप ऐसी प्लेसेस पे चले जाओ जहां पे मान लो पोर्ट्स भी हैं, सी पोर्ट्स कह रहा है कि इफ यू विजिट सच प्लेसेस तो आप देखोगे देयर आर मेनी पीपल्स हु आर हेल्पिंग यू। ट्रेन्स अपने से थोड़ी ना ऐसे चल देंगी, तुम देखते होगे प्रॉपर उनका अनाउंसमेंट होता होगा, ठीक है, सिग्नल्स होते हैं, सिग्नल फॉलो होते हैं, ऑल द थिंग्स, और वहां बहुत से वर्कर होते हैं जो दे आर हेल्पिंग, ठीक है। लोग यात्री पैसेंजर्स तो होते हैं बट एक्सेप्ट पैसेंजर देयर आर मेनी पीपल्स हु आर वर्किंग देयर in such type of places, whether it is a railway station, whether it is an airport or whether it is a seaport, there are many other persons which are working together to provide all the facilities to the passengers। ठीक है, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो वहां पे वर्क करते हैं जिससे कि पैसेंजर्स को पूरी सी पूरी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा सके। ठीक है बेटा, देखो जैसे आप बस स्टैंड ही चले जाओ, इतनी बस खड़ी होती है, आपको क्या पता, तो वहां एक इंक्वायरी काउंटर होता है, आप जाके वहां बताओगे आई वांट टू गो टू लखनऊ, आई वांट टू गो गोरखपुर और दिल्ली, सो फ्रॉम वेयर आई विल गेट द बस और विच नंबर बस विल गो देयर एंड व्हाट इज द टाइमिंग ऑफ द बस, यू कैन आस्क देयर, ऑल टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन यू विल गेट देयर। सो ऐसी जगह पे बहुत से लोग ऐसे हैं जो वर्क करते हैं हमें अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए। रेलवे स्टेशन चले जाओ, वहां कुछ भी है ट्रेन के, देयर इज ए इंक्वायरी काउंटर, आप वहां से पूरा इंक्वायरी काउंटर से पूछ सकते हो कि विच ट्रेन आर गोइंग इन दिस रूट, ठीक है। रिजर्वेशन करानी है, रिजर्वेशन काउंटर में चले जाओ, इफ यू वांट टू टेक द टिकट, सो ऑल द फैसिलिटीज आर देयर इन सेम मैनर इन द एयरपोर्ट आल्सो एंड इन द seaports also। Many peoples are working there to provide a good facilities to the passengers। अब देखो now chapter is complete। Now student let discuss some of the key words given in this chapter। Let discuss that submarine, a ship that can travel under the sea। ठीक है, ये ऐसी शिप है जो पानी के अंदर चलती है, दिखाई नहीं देती है, दिखाई दे जाएगी तो दुश्मनों को पता नहीं चल जाएगा, ठीक है, तो अंडरग्राउंड वाटर ये चलती है। ठीक है, मैंने अभी बताया था इट प्रोटेक्ट द सी, इसका क्या मतलब होता है अभी थोड़ी देर पहले समझाया था ना आप लोग को, दैट इज द रीजन। मेट्रो, मेट्रो ये क्या है बेटा, जो बहुत बिग सिटीज हैं जहां पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, big cities where the population of the people is very much, so in that type of a
अब पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि वहां इतने रोड हैं, इतने ब्रिजेस हैं, सब कुछ है, उसके बाद भी पब्लिक को और ज्यादा मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ रही है। तो ऐसे शहरों में अंडरग्राउंड ट्रेनें भी चलाई जाती हैं, जिसे हम मेट्रो बोलते हैं। जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा? मेट्रो ट्रेन्स बोलते हैं। दीज ट्रेन्स रन वेरी फास्ट बट इन द एरिया ऑफ ए दिल्ली ओनली। ये नहीं कि दिल्ली से वाराणसी आ रही है मेट्रो, नहीं। मेट्रोस क्या है? किसी पार्टिकुलर एरिया में चलती है और ये बहुत लॉन्ग डिस्टेंस कवर नहीं करती है। शॉर्ट शॉर्ट डिस्टेंस के लिए ये ट्रेन्स लगाई होती हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल्स, फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल। एयरशिप ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था। एयरशिप मशीन दैट कैन फ्लाई जस्ट लाइक एन एरोप्लेन, दैट इज नोन एज एयरशिप। जैसे एरोप्लेन फ्लाई करता है एयर में, जैसे ये भी फ्लाई करती हैं, क्योंकि एरोप्लेन भी तो एक मशीन ही ना है, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग प्राणी थोड़ी ना है हमारी तरह, है ना। अब देखो, पोर्ट, पोर्ट बता दिया अभी, जस्ट आप लोग को एक्सप्लेन किया। द प्लेस फ्रॉम वेयर शिप्स लोड एंड अनलोड, ठीक है। तो वो जगह होती है हार्बर, जहां पे शिप खड़ी होती है, उस प्लेस को कोस्ट लाइन में, ठीक है। और उसके अगल बगल जो एक बड़ा सा शहर बस जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पोर्ट बोलते हैं। इज इट क्लियर? हाईवेज, मेन रोड कनेक्टिंग सिटीज, दे आर डिजाइन फॉर हाई स्पीड ट्रैफिक, ठीक है। हाई स्पीड ट्रैफिक के लिए डिजाइन होते हैं, और ये मेन रोड जो है कनेक्टिंग सिटीज होते हैं, ठीक है। ये हाईवेज क्या है? एक सिटीज को दूसरी सिटीज से कनेक्ट किया हुआ, क्योंकि इंडिया में बहुत सी सिटीज है ना, ठीक है। तो ये एक सिटीज को दूसरी सिटी से क्या किए हुए हैं बेटा? कनेक्ट किए हुए हैं, ठीक है। एंड दे आर डिजाइन फॉर हाई स्पीड ट्रैफिक। यहाँ पे हाई स्पीड ट्रैफिक मीन्स ट्रांसपोर्ट वाली चीजें, जैसे ट्रक, बसेस, ट्रक्स हैं, बसेस हैं, ये बहुत ज्यादा चलते हैं, ठीक है, हाईवे पे। ऐसा नहीं है कि अदर मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं चलते, वो भी चलते हैं, लेकिन हाई स्पीड ट्रैफिक मतलब तेज स्पीड से जाने वाली गाड़ियां। क्योंकि बहुत, मैंने आप लोग को क्या कहा कि बहुत सा ट्रांसपोर्ट लैंड के रास्ते भी होता है, ठीक है। अब लैंड ट्रांसपोर्ट से, एक ट्रांसपोर्ट मतलब एक जगह से दूसरे जगह सामान ले जाना, ले आना, तो वो लैंड के रास्ते भी होता है। तो वो जो ये ट्रक्स हैं ये सब कैसे जाते हैं? ये हाईवे से जाते हैं, ठीक है। ये बहुत जैसे सिटीज के रोड उतने वाइड नहीं होते, उतने चौड़े नहीं होते हैं, हाईवेज बहुत बड़े बड़े होते हैं। 2 और 3 बस एट से टाइम क्रॉस कर सकती है विद फुल स्पीड, बहुत ब्रॉड होते हैं, बड़े होते हैं, ठीक है। इसलिए इन्हें हाई स्पीड बोला गया है, हाई स्पीड रोड्स। क्योंकि छोटी जगह पे आप बहुत तेज नहीं चला सकते ना, सामने से कोई गाड़ी आएगी आपको ब्रेक भी लेनी पड़ेगी, जगह कम है। लेकिन ये हाईवेज क्या है? ये बहुत चौड़े होते हैं, इज इट क्लियर? बहुत ज्यादा स्पेस होती है, इसलिए हाई स्पीड ट्रैफिक चलती है। अब थिंग्स टू रिमेंबर पे देख लेते हैं। वी नीड टू ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन ऑर्डर टू ट्रांसपोर्ट पीपल एंड गुड्स, ठीक है। कह रहा है कि हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव ही क्यों करते हैं? अरे बैठे बैठे सब कुछ मिल जाएगा। सो वी नीड टू ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन ऑर्डर टू ट्रांसपोर्ट पीपल, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम ट्रांसपोर्ट खाने की चीजों का और दूसरे सामान का करते हैं, हम भी तो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। जैसे हम बनारस में, बनारस से दिल्ली गए, तो ट्रेन हमें भी तो ले गई, ठीक है। सो वन प्लेस टू अनदर इन ऑर्डर टू ट्रांसपोर्ट पीपल एंड गुड्स। सेकेंड, to travel we need mean of transport like roadways, waterways and airways, okay। कह रहा है कि if we are moving from one place to another, so what are the modes of transport, हमारे पास क्या क्या है? अगर हमें एक जगह से दूसरे जगह पे बेटा जाना है, तो हमारे पास कौन कौन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है? दैट इज लैंड ट्रांसपोर्ट भी है हमारे पास, वी हैव हैविंग एयर ट्रांसपोर्ट आल्सो, एंड वी आर हैविंग वाटर ट्रांसपोर्ट आल्सो। और वाटर ट्रांसपोर्ट चीपेस्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट है। लैंड बनाने के लिए, रोड बनाने के लिए बहुत पैसा लगता है ना, एयरपोर्ट बनाने में बहुत पैसा लगता है, लेकिन वाटर आपको खरीद के लाना नहीं पड़ता, ये तो ऑलरेडी 70% से ऊपर है, ठीक है। देयर आर ओनली 7 पार्ट्स वेयर इज द लैंड, रेस्ट ऑफ ऑल तो सब वाटर ही वाटर है, ठीक है।
तो उसके लिए आप लोगों को वाटर भाई करके नहीं लाना पड़ता। ठीक है बेटा, ये हो गया। With the help of a technology, man has made great progress in all walks of life. ठीक है, कह रहा है टेक्नोलॉजी जो जो न्यू साइंस डिस्कवरीज हैं इसकी वजह से हमने अपने ह्यूमन बींग्स ने बहुत सी चेंजेस ला ली है। ठीक है, से ऑन इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, किसी भी चीज में देख लें, अगर ट्रेवल है या एजुकेशन है, स्कूल्स हैं, मेडिकल लाइन है, ठीक है, तो कोई भी फील्ड आप देख लो, वी हैव डन लॉट ऑफ थिंग्स इन दैट। ठीक है, तो यही आपको कह रहा है ये कि हमने बहुत सी प्रोग्रेस कर ली है इन ऑल पार्ट ऑफ ए लाइफ। ठीक है, ऑल द व्हीकल दैट मूव ऑन रोड आर कॉल्ड रोडवेज, और जितनी भी व्हीकल्स हैं विच आर मूविंग ऑन द रोड स्टूडेंट, दे आर नोन एज रोडवेज। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।